Okay, today we can go to the fourth unit. इसके अंदर ऐसा पढ़ाने के लिए कुछ चीज नहीं है. इसमें this can be useful for general knowledge as well. It consists of certain uh, values and certain knowledge that you will get about India and its subcontinents. तो इसके अंदर इंडिया का जो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड एक्सटेंशन होगा, इंडिया का वो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट एक्सटेंशन होगा, इसका नेबरिंग कंट्रीज क्या कौन सी है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स क्या चीज है, ये सब दैट इज ऑल कम्स अंडर दिस यूनिट. सो फ्रॉम देयर इज only one class required for the same. I have collected some of the details and I will discuss that today. When we say about the latitudinal extension and longitudinal extension of India, latitude and longitude you may know ऐसा है Earth. This is Earth. If it is this is Earth. Earth को डिवाइड किया है मल्टीपल लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड, ऐसा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन से अर्थ को डिवाइड किया है. तो यहाँ हो गया दिस इज 0 डिग्री. इफ वी कंसीडर दिस as 0 डिग्री, दिस इज द प्राइम मेरिडियन दैट वी नो, एंड दिस इज द 0 डिग्री horizontal line, that is the equator. So when we say about the latitudinal and longitudinal extension, it's represent the location of an area which lies between these latitude. कौन सी latitude पे है? अभी यहाँ से 0 से शुरू होकर if you move here, यहाँ से 1, यहाँ से 2, ऐसे this will move, and to the back this will reach as 180. In the back side we know that this is 180 degree तक इसके पीछे तक जाएगा. And यहाँ भी ऐसा है, this will start from 1 degree to the 180 degree, वो पीछे तक. तो इसमें क्या है, when we move to the right, अभी equator, I will remove remaining one. ऐसा बोलने से to the right, इसमें equator right side में this is actually the east. तो sorry, वो latitude longitude prime meridian के right side को we will say it as east, and to this side this is west. 0 degree east, 0 degree west, ऐसा है. And when we say about the low latitudinal extension, this is equator. Equator में भी ऐसा है, from 1 degree यहाँ 1 degree to this will reach up to 90 degree तक. इस point पे ऐसा count करने से there will be, this will move up to 90 degree है. तो 90 degree तक बोलने से यहाँ 90 degree, यहाँ 90 degree, ऐसे opposite side में 90 degree, 90 degree. So total यहाँ से this point, this pole to this is pole, north pole, and this is north pole, and this is south pole. So from 0 degree to south pole it is 90 degree. From 0 degree to the north pole it is 90 degree. So total latitude होगा 180 degree. And as this is the north pole, so this side to the from equator towards the pole in the this is northern hemisphere, this side we can say it as north. So यहाँ से 0 degree to the south pole we can say this as the southern hemisphere, and this is south. So what happens is यहाँ से इतना जगह we can say north latitude will come as north and longitude will come as east. यहाँ कैसे है, the latitude will comes as south, and as it is the right side this is east. And यहाँ कैसे है, this is actually west है, and this is north. So this side we can say it as northwest, and this side it will be south, and this is
साउथ वेस्ट. दिस इज हाउ इट इज डिवाइडेड. तो नॉर्थ हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, साउथ वेस्ट हो गया. तो where if you locate India, you can see that India is located somewhere east जगह पे है. So India का latitude and longitude आएगा north east. इंडिया का latitude extension होगा इतना डिग्री नॉर्थ, इतना डिग्री ईस्ट. तो एक्सटेंशन पूरा इसके अंदर ही आएगा. If some country that will come between, that will change. But when we consider the latitude and the longitudinal extension of India, the latitude will comes under north and longitude will comes under east. ये याद रखना है. So what is the extension? The latitudinal extension of India is 8 degree नीचे से, because equator यहाँ है नीचे 0 डिग्री है. तो यहाँ से 8 डिग्री तक आने के बाद 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ. तो दैट इज N. नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. तो दोनों नॉर्थ साइड में भी ही है. इंडिया लैटिट्यूडल एक्सटेंशन फ्रॉम 8 डिग्री फ्री का हाफ है 4. तो 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट्स टू 37 डिग्री 6 मिनट है इसका लैटिट्यूडल एक्सटेंशन. And when we say about the longitudinal extension, I said this is east. So यहाँ कितना है 68 डिग्री. तो यहाँ बहुत दूर होगा हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन वॉट एवर इट इज. 0 डिग्री मेरिडियन ऐसे इतना दूर होगा. यहाँ से इफ वी मूव इंडिया स्टार्ट आफ्टर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. उतना एक्सटेंशन है. याद रखना है 8 बिलो 10 है, नियर टू 40 है. बिलो 10 तो 10 के सामने 10 to 40 याद रखना है. उसके सामने होगा इंडिया का लैटिट्यूडल एक्सटेंशन. एंड लॉन्जिट्यूडल एक्सटेंशन इफ यू लुक 68.7. so almost 70 हो गया on left side and on the right side this is almost 100 हो गया. तो ये जो वैल्यू याद रखने के लिए मुश्किल है. तो बिकॉज as we are getting the options you can remember that it is between the latitudinal extension will be near to 10 and 40 and longitudinal extension will be near to 70 and 100. ये याद रखना है. 30 का डिफरेंस है. 10 दोनों साइड में 30 डिग्री ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिफरेंस आता है. तो 10 डिग्री 40 डिग्री 70 डिग्री 100 डिग्री. एक्यूरेट बोलने से इट इज 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25. एंड as we can add the north east. ये याद रखना है. that is the latitudinal and longitudinal extension of India. And when we say about the location we want to understand certain more things. That is India is located in the central part of Asian continent. तो एशियन कॉन्टिनेंट के ऑलमोस्ट सेंट्रल पोर्शन में इंडिया इज लोकेटेड है. नॉट प्योरली ऑन द सेंटर, इट इज द ऑलमोस्ट साउथ. इंडिया के एशियन कॉन्टिनेंट लेने से इसका साउथ पोर्शन में होगा इंडिया. एंड व्हेन वी टेक द longitudinal extension it comes almost to the center region of Asia. Then it covers an area of 3.28 million square kilometer. 3.28 million square kilometer है इसका area. And it accounts about 2.4% of the world's land surface. वो land surface पूरा land surface लेने से almost 2.4%. तो बहुत कम है. इंडिया इज द 7th largest country है. इसलिए still it is only occupying only 2.4% of the land area. ये याद रखना है. And as we this is the statement, but when we say about the population it comes on the second position में है. तो उतना ज्यादा population इंडिया में है. Yeah, right now India's population density is almost near to 400 hai. And India comprises of right now it has 28 states and 9 union territories.
Right now we know that Jammu and Kashmir. तो ये नया आया, सॉरी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख आया है। तो ऐसा दो नया यूनियन टेरिटरीज भी आया है। सो इंक्लूडिंग दैट वी हैव 28 states and 9 union territories, then overall 37 डिवीजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है इंडिया के लिए। एंड इंडिया शेयर्स अ बाउंड्री विद बांग्लादेश, दैट इज द लार्जेस्ट बाउंड्री which is being shared, and the smallest boundary is with अफगानिस्तान। ये याद रखना है, सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर किया है बांग्लादेश के साथ और सबसे कम बाउंड्री शेयर किया है अफगानिस्तान के साथ। so, हमारे जो एक साइड और वन साइड अफगानिस्तान बोलने से वेस्टर्न साइड में हो गया, बांग्लादेश बोलने से हमारा ईस्टर्न साइड में आ गया है। ईस्टर्न साइड में वी आर शेयरिंग मैक्सिमम एरिया। तो ऐसा है इसका डिवीजन। इसमें याद रखना है टोटल एरिया ऑफ इंडिया, परसेंटेज लैंड मास वो तो, लेकिन राइट नाउ ये याद रखना है 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज है हमारे लिए। एंड रिगार्डिंग द नेबरिंग कंट्रीज we have from we can take from the western side. This is the western side, this is the eastern side. So when we say it is Pakistan, then Afghanistan, Afghanistan smallest area है, इधर देखो इतना only this much of area is shared by Afghanistan. Right now this area is POK, Pak occupied Kashmir का area होगा. It is not under the control of India right now, but when we say about the administrative division, this is part of India. So the first one Pakistan है, then Afghanistan. So western side में almost हो गया. In the western side, the main countries are Pakistan and Afghanistan. Then comes China. This is China. So almost northern side में entirely covered by China, except यहाँ पे दो country है, नेपाल and Bhutan. So north and northeastern side में हो गया China, हो गया नेपाल, हो गया Bhutan, हो गया। We know about Bhutan as it is closer to हमारे अरुणाचल प्रदेश के सामने है, that is Bhutan. तो इसके साथ हो गया China भी है। That these two countries we know. Along with that, we have to add Nepal in the north and north answer. And coming to the east, it is Myanmar. This Myanmar region हो गया. Then, as I said, Bangladesh. Bangladesh covers the largest area. क्योंकि अभी ये देखने से यहाँ से यहाँ तक है, but if you take यहाँ से ये पूरा cover करके इतना सा एरिया बांग्लादेश हमारे साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। दैट इज व्हाई द कंट्री विथ लॉन्गेस्ट बाउंड्री इज बांग्लादेश आता है। देखने में छोटा है लेकिन इट इज शेयरिंग फ्रॉम दिस मच ऑफ एरिया। एंड व्हेन वी कंसीडर चाइना, यहाँ से इतना एरिया तो माइनस करना है, इतना एरिया ये नेपाल एंड भूटान गया, अदरवाइज इट वुड बी चाइना था, लेकिन अभी चाइना नहीं है, दिस इज बांग्लादेश, याद रखना है। And the Sri Lanka, and if Sri Lanka in the southern area में India have the Sri Lanka, and the nearest two islands है, one is Sri Lanka है, second one is Maldives है। ये जो सामने वाला हमारा इंडिया का सामने वाला जो आइलैंड्स है, आइलैंड कंट्रीज है, मालदीव्स भी अलग कंट्री है, श्रीलंका भी अलग कंट्री है। तो ये दोनों हो गया हमारा टू island countries in the southern side. So southern side we know that this is actually Arabian Sea है, and जो इस जगह ये सामने वाला इस जगह में क्या बोलेगा, this is Lakshadweep Sea, and this is Bay of Bengal, and this is Indian Ocean. So it is surrounded this area, the land which is being covered by water body in these three area, ये तीनों एरिया में हमारे लिए land is being covered by water body. That is why this area is known as peninsular India, क्योंकि ये इस तीन जगहों पे पानी है।
सो इंडियन पेनिनसुला बोलने से यहाँ से शुरू होकर यहाँ यहाँ हमारा सॉरी यहाँ तक आएगा, तो वेस्ट बंगाल से गुजरात तक हो गया हमारा पेनिनसुलर एरिया, बिकॉज द पेनिनसुलर एरिया is a land area which is being covered by water bodies on its three side. इंडियन पेनिनसुला भी ऐसा है, एक साइड में अरेबियन सी है, दूसरे साइड में बे ऑफ बंगाल है, एंड तीसरे साइड में हो गया हमारा इंडियन ओशियन। तो ये सब याद रखना है। देन हमारा लैंड एक्सटेंशन, तो ये क्या सबको पता होगा, इन द नॉर्थर्न साइड इट इज कश्मीर, इट इज कश्मीर है अभी, दिस वाज ये कश्मीर हो गया। देन इन द सदर्न साइड इट इज कन्याकुमारी, कन्याकुमारी दिस पॉइंट में, राइट नाउ इट हैज बिकम कश्मीर एंड लद्दाख हो गया, लद्दाख हो गया इस स्टेट पे, but the southernmost northernmost area is the Kashmir and the southernmost tip is the Kanyakumari that comes in Kashmir, Jammu and Kashmir, that we know, and Kanyakumari comes in Tamil Nadu district. Tamil Nadu district का Kanyakumari है the southern lane extension, southmost, and in the eastern side it is Arunachal Pradesh. We are proud. This is our state, Arunachal Pradesh hai. Then in the western side it is Gujarat. So this is how the land is being extended. If you want to say the state name, this is in the southern side it is Tamil Nadu, and in the northern side it is Ladakh right now, and eastern side Arunachal Pradesh hai, and in western side it is Gujarat. And if you look the north south and west east India डिवाइड करने से this is almost near to, इसका एक्सटेंशन देखने में यहाँ ज्यादा है, फिर भी this is almost same. There is only difference of 300 किलोमीटर का, 300 नहीं 290 और 280 किलोमीटर का डिफरेंस ही है नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो when we take the north south extension of India, it runs a kilometer of 3,200 or 214 किलोमीटर। तो इसमें देखो 1 2 3 4, 1 2 3 ऐसे हो गया, लास्ट में 4, ये याद रखने से you will get 3,214 किलोमीटर हो गया नॉर्थ साउथ, and from east to west it is 2,933, तो 2,933 किलोमीटर हो गया ईस्ट टू वेस्ट इसका एक्सटेंशन। तो ऑलमोस्ट सेम है, नियर टू 3,000 है। ये भी ऐसा याद रखने से आपको समझ में अभी एग्जाम में पॉइंट पूछने से यू कैन अंडरस्टैंड इट, से इट इजली। ऑलमोस्ट 3,000 है दोनों साइड में, one is 3,214 kilometer and another one is 2,933 kilometer. And India's seaward extension is 12 nautical mile. इसका मतलब है कि if you look at this point, यहाँ से हमारा बाउंड्री है 12 nautical mile तक इंडियन सी है, इंडिया के अंडर है, इंडिया डोमिनेटेड एरिया है। अभी when we say about Bombay High, actually that is in sea, so that area is also come under the Indian territory, Indian territory के नीचे ही आ रहा है। तो जो areas है till 12 nautical mile, that area belongs to India. The importance of island comes in such situation. अभी when we say we have two islands, one is Lakshadweep and another one is this is Lakshadweep Sea and this is Andaman. तो ये हो गया। तो लैंड एरिया से कितना दूर है 12 नॉटिकल, तो यहाँ से हमारा 12 नॉटिकल माइल तक सी बिलोंग्स टू इंडिया, दैट इज इंटरनेशनल लॉ है। तो यहाँ हमारा आ गया फिर अंडमान एंड निकोबार, तो यहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक
हमारा सी है. दैट इज द रेलेवेंस ऑफ आइलैंड. तो उतना एरिया वी कैन डोमिनेट. वी कैन अभी फिशिंग करने के लिए भी, माइनिंग करने के लिए भी, सब चीज के लिए वी कैन यूज इट. इफ somebody want to enter here, they want to get the permission of India. इंडिया के परमिशन चाहिए till 12 nautical miles तक. And India has a coastal line of 6,100 किलोमीटर इन मेल. ऐसा है. अभी कोस्ट लाइन कितना है? इट एक्सटेंड फ्रॉम यहाँ रान ऑफ कच्छ इस एरिया से इट विल एक्सटेंड टू गुजरात, टू महाराष्ट्र, टू गोवा, टू कर्नाटका, टू केरला, टू तमिलनाडु, टू आंध्रा, टू ओडिशा, टू वेस्ट बंगाल. तो इतना है हमारा कोस्टल लाइन. इट यहाँ से वेस्ट बंगाल से गुजरात तक कितना किलोमीटर है? 6,100, ऑलमोस्ट 6,000 किलोमीटर. वेरी इजी है. अभी नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन हो गया ऑलमोस्ट 3,000, तो 3,000 के डबल है हमारा कोस्टल लाइन. ऑलमोस्ट 6,000 है हमारा कोस्टल लाइन. द एंटायर ज्योग्राफिकल cost is almost 7,117 kilometer, including the mainland plus island groups, निकोबार एंड लक्षद्वीप. तो मेनलैंड का हो गया 6,000, इसके साथ 1,500, ऑलमोस्ट 1,500 ज्यादा है. if we add the coastal areas of our islands as well, overall 6,000 plus 1,500, वो भी इसी है. 3,000 के आधा है 1,500. तो 1,500 ये यहाँ से नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ऑलमोस्ट 3,000 है. तो 3,000 के आधा हो गया 1,500, डबल हो गया 6,000. तो कॉस्ट लाइन कितना है? मेन लैंड का हो गया 6,000. If we add 1,500, that is the coastal area of the island. If we add that, we will get almost 7,500 kilometers. तो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा टोटल. तो 7,517 kilometers. तो इसके सामने, because as we are getting the option, that is why I am saying अभी कुछ डाउट नहीं आना है. नॉर्थ साउथ ऑलमोस्ट 3,000, साउथ ईस्ट वेस्ट ऑलमोस्ट 3,000. कोस्टल लाइन आ गया, इसका डबल आ गया, 3,000 के डबल आ गया, 6,000 आ गया. If we want to add the coastal line also, sorry, islands also, so we can add half of that, that is 1,500 plus 6,000, that is 7,500. ये हो गया हमारा सी, हमारा एक्सटेंशन, कोस्टल बाउंड्री का एक्सटेंशन. Then international boundaries. International boundaries. ये हो गया फर्स्ट वन, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में है पाक स्ट्रेट. इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री है पाक स्ट्रेट. देन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में हो गया रेड क्लिफ लाइन. देन इंडिया एंड चाइना के बीच में हो गया मैकमोहन लाइन. एंड इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में हो गया डूरंट लाइन. ये सब पूछने का चांसेस है. ये भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज कॉल्ड. तो पाक स्ट्रेट है. तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दैट इज रेडक्लिफ लाइन है. ऐसा याद रखना है, ISP, IPR, ऐसा कुछ याद करके आपको याद रखना होगा. देन यू कैन गेट. ये तो पूछने का चांसेस है, 100% नहीं है, फिर भी ये वन वर्ड क्वेश्चन में आता है. देन द सदर्न टिप ऑफ द मेनलैंड. अभी बाउंड्री के इंटरनेशनल बाउंड्री सदर्न टिप. तो इसके बाद में मेनलैंड का बाउंड्री हो गया, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज कन्याकुमारी इन तमिलनाडु. देन इफ यू टेक the southernmost point of India, that is Indira Point, इंदिरा गांधी, ये याद रखना है. तो इंदिरा पॉइंट, नॉर्थ एंड साउथ में इंदिरा गांधी का यही आता है. इन द नॉर्थ इट इज इंदिरा कॉल एंड इन साउथ इट इज इंदिरा पॉइंट. ये याद रखना है. दैट इज
भी लक्षद्वीप अंडमान निकोबार सीपी है, ये तो देखो इससे नीचे है, दैट्स व्हाई हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट इज कंसिडर्ड एज इंदिरा पॉइंट है, एंड इन द नॉर्थर्न साइड इट इज लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड अभी स्टेट नहीं है तो जम्मू एंड कश्मीर में है, दैट इज इंदिरा कॉल. The northern side it is Indira Call and in southern side it is Indira Point. ये याद रखना है. Then coastal state ये भी पूछ सकता है. I have already told you this include Gujarat, Maharashtra, Goa. यहाँ small area है, that is also a state. Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha and West Bengal. And you can also see Puducherry here, that is Union Territory है. यहाँ अभी Daman Diu, यहाँ you can see Daman Diu इस जगह पे है, तो इस पुदुचेरी का पार्ट है माही, that is comes under this area. तो बहुत कुछ Union Territories आता है, but that is not relevant. Mostly they will ask for the states. Which states comes under the coastal स्टेट ऑफ इंडिया. कोस्टल लाइन में ये इसमें से कौन सी स्टेट आता है, ये पूछने से यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. दिस इज गुजरात है, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, देन केरला, देन तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल. तो इफ यू अभी ये तो पुराना पिक्चर है, असली में इसको तो अभी डिवाइड करके ये हो गया, तेलंगाना आ गया है, फिर भी आंध्रा कोस्टल एरिया तो आएगा, पूरा आंध्र प्रदेश ही आएगा, and then Odisha and the West Bengal. That is how the coastal line of India is being divided. Then India वो इंडिया का जितना स्टेट है, I said it is 28 स्टेट है, इसका कैपिटल ये भी याद रखना है, ये भी पूछने का चांसेस है. तो दिस इंक्लूड्स अभी यहाँ से लेने से केरला, केरला से लेने से केरला का है त्रिवेंद्रम और तिरुवनंतपुरम. देन कर्नाटका, दैट इज बेंगलुरु और बेंगलुरु हो गया. देन गोवा, दैट इज पनाजी. ये सब याद रखने के लिए मुश्किल है, फिर भी कुछ बहुत कुछ स्टेट का याद रखने से आपको तो अच्छा होगा. महाराष्ट्र मुंबई, गुजरात गांधीनगर, गुजरात जी, राजस्थान जयपुर, हरियाणा चंडीगढ़ है, दिस इज चंडीगढ़, देन पंजाब अगेन चंडीगढ़. देखो दो स्टेट के लिए सेम कैपिटल चंडीगढ़, ये याद रखना है. For Punjab and Haryana, it is Chandigarh. Abhi, if you look at this, you can see Chandigarh here also, that is comes under Union Territory है. Union Territory के capital that is Chandigarh itself. तो 3 capital हो गया चंडीगढ़, ये याद रखना है. हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़. चंडीगढ़ itself is a Union Territory as well. इसका हरियाणा और पंजाब का कैपिटल भी है, that is Union Territory as well, ये याद रखना है. Then हिमाचल प्रदेश शिमला, शिमला इज द क्लीनेस्ट सिटी है वो. Then उत्तरांचल देहरादून, then उत्तर प्रदेश लखनऊ, then बिहार that is पटना, सिक्किम गैंगटॉक, आसाम दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, then नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम. ये सब खुद से पढ़ना होगा, और कोई उपाय नहीं है. त्रिपुरा अगरतला, देन मेघालय शिलोंग, वेस्ट बंगाल कोलकाता, ओडिशा भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, तमिलनाडु. आंध्र प्रदेश का अभी देखो, आंध्र प्रदेश का अभी बहुत कुछ बोल रहे हैं. दिस इज नॉट हैदराबाद राइट नाउ, ये तो चेंज हुआ है. तमिलनाडु चेन्नई, देन मध्य प्रदेश भोपाल, झारखंड रांची,
राजनी नहीं है, रांची, RINCHA। ओके, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, रांची है। देन छत्तीसगढ़ रायपुर, देन तेलंगाना का अभी हैदराबाद है। So these are the major states and capitals. सर हाँ, हेलो। आंध्र प्रदेश का अभी हैदराबाद नहीं तो क्या है, कौन सा है? एक मिनट, ये वो क्या था, हम भूल गया, लास्ट के पहले हम बोल देगा। ओके, हमको याद ओके था। ओके आंध्र प्रदेश यूनियन टेरिटरी, देखो यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, वो चंडीगढ़ ही है, चंडीगढ़। देन दमन ड्यू, दमन। देन दादरा नगर हवेली, सिलवासा, पुदुचेरी, Pondicherry, actually Pondicherry, that is Pondicherry itself, Pondicherry को पुदुचेरी ही बोलता है, इसलिए तो यह पुदुचेरी दिया है। सेम है, Pondicherry Pondicherry है, पुदुचेरी नहीं, पुदुचेरी। You can add these to then Andaman and Nicobar Islands, Port Blair, then Lakshadweep, Kavaratti, Delhi नहीं, न्यू दिल्ली है एक्चुअली, दिस इज आल्सो न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली है। जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर, देन लद्दाख का लेह है। मिल गया, अमरावती है। ओके, आई विल चेंज दिस इज अमरावती, आंध्र प्रदेश अमरावती या था। सो दिस इज हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें तो थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, वो करेक्ट करके आपको सेंड कर देगा। ओके सर, GSR जो बोला था ना, GS यूनियन, जो GSR पर आता है ना, वो जो बोला था ना यूनियन टेरिटोरी तो एड है बोला था। नहीं, अभी जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख आया है ना नया वाला, एंड यूनियन टेरिटरी बहुत सही है असली में, है ना, दिल्ली है ना, कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया बोलता है असली में। और दिल्ली भी दिया है अंडमान में। दिल्ली इज कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसमें भी आता है जम्मू। ये सब बाकी सब है, चंडीगढ़ है, पुदुचेरी है, दमन ड्यू है, दादरा नगर हवेली है, लक्षद्वीप है। दामन, ये दादरा नगर हवेली, उसका ना जो कैपिटल जो दामन है ऐसा बोल रहा था। हाँ, दमन ड्यू का दमन नहीं, वो पुदुचेरी का है, पुदुचेरी का है ना, इसमें हम पौंडीचेरी पुदुचेरी दोनों सेम नेम है जी। नहीं, ये दादरा नगर हवेली का, हाँ, दादरा नगर वो सिलवासा है कैपिटल। वो तो दामन है बोला था सर। दामन नहीं, दामन ड्यू का दामन है, दादरा नगर हवेली का सिलवासा है। ओ सर, वो जो बोला था ना कि ये जो ना कंबाइन हो गया बोल रहा था, ये दादरा नगर हवेली और दमन दीव जो ये सब कंबाइन नहीं हुआ है। आई डोंट हैव दैट नॉलेज, ऐसा नहीं है, हम अभी तक नहीं सुना है ना इसके ऊपर। आई विल क्लैरिफाई दैट। ओके ओके सर, वो जिस सर जो बोला था तो हम कंफ्यूज हो गए इसलिए पूछ रहे सर। हो ठीक है। तो these are the union territories। तो दिल्ली नहीं है, न्यू दिल्ली है। ओके, वो कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया है एक्चुअली। यूनियन टेरिटरी में वी विल कंसिडर इट बिकॉज उधर की ऐसा गवर्नर का रूल होता है। तो यूनियन टेरिटरी ऐसा है दैट इज नॉट रूल्ड बाय चीफ मिनिस्टर, नहीं है, डायरेक्ट बाय गवर्नर होगा एंड मेजर जनरल होगा। ओके, देन इंडियन सबकॉन्टिनेंट ऐसा है अभी, दिस आर ऑल एक्चुअली इंडिया का जो है, एंड इसमें दूसरा पोर्शन है दैट इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट मीन्स एक पर्टिकुलर लैंड मास होगा दैट इज बी मेन लैंड से अलग करने के लिए बीच में पानी, ऐसा कुछ चीज होगा। बट व्हेन वी टेक एशिया एंड यूरोप,
तो उधर जाने से उधर भी ऐसा डिवीजन नहीं है, बट वी आर कंसिडरिंग दिस एज 2 कॉन्टिनेंट्स है। जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलने से देयर विल बी सम फिजियोग्राफिकल डिवीजन इस एरिया पे है। तो इसका ऐसा है, इन द नॉर्थर्न पोर्शन ये पूरा जगह पे इफ यू लुक इट इज एक्चुअली द हिमालयास। तो हिमालय इन द नॉर्थ डिवाइड कर रहा है, तो चाइना इज नॉट कम्स अंडर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देन इन द ईस्ट and the northeast it is Hindu Kush mountain. So actually there is a Pamir knot here, this point, तो यहाँ से ऐसा split होकर extend हो रहा है, it is Hindu Kush mountain है। and you can see Suleiman range is actually in Pakistan, वो भी पामिर नॉट से एक्सटेंड होकर ऐसे आता है। तो ये दोनों आएगा इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। देन इन द ईस्टर्न साइड इट इज पूर्वांचल हमारा, दिस इज पूर्वांचल, दैट इज ईस्टर्न हिमालय का वो एक्सटेंड है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन है, दैट इज पूर्वांचल, दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश ना। तो अरुणाचल प्रदेश वही है इसका दूसरा डिवीजन, ये आएगा इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन। एंड नीचे हो गया इंडियन ओशियन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो ये पूरा ये सब कॉन्टिनेंट हो गया, ऐसा इसका डिवीजन है। तो इसका बाउंड्री मेन है हिमालय, हिंदू कुश एंड सुलेमान रेंजेस, देन पूर्वांचल रेंज। ये हो गया लैंड एरिया में, इन द कॉन्टिनेंट in the ocean part it is Indian Ocean, in the south Arabian Sea, in the west and Bay of Bengal in the east. And this include Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, India and Sri Lanka. These countries we can say it as the Indian subcontinent. This is, as you can see here, this is the Suleiman range here, and Hindu Kush actually this ये जो एरिया है this is actually Hindu Kush region है, Suleiman range यहाँ से ऐसा extension है। तो this makes one side and this is पूर्वांचल। तो नागा हिल्स, मिसो, नागा ये सब आएगा हमारा पूर्वांचल में आएगा इस साइड पे। देन इसी साइड में मोस्ट यू कैन सी द हिमालय रेंज। तो ऑलमोस्ट लैंड एरिया कवर कर दिया है, ऐसे इसका लैंड एरिया कवर। फिर बे ऑफ बंगाल हियर एंड अरेबियन सी, देन इंडियन ओशन एट द बॉटम। इट्स मेक्स ए सर्कल। इसके बीच में जो जो कंट्रीज आता है, तो इसका पेक्युलरिटी क्या है? एक्चुअली दिस लैंड, ये एंटायर लैंड इज यूनाइटेड बाय अ पर्टिकुलर फिजियोग्राफी। वो फिजियोग्राफी है, वो लैंड एरिया में पूरी कवर्ड बाय ऐसा माउंटेन रेंजेस है। तो इसके अंदर आ जाएगा these countries actually. Earlier this belongs to ऐसा इंडियन सबकॉन्टिनेंट बोल के पूरा पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, जो भी हो, that comes under वो पहले से इंडिया का था, अभी वो डिवाइड करके not saying about just before independence, I am saying about long years back. तो ऐसा था because the boundary was made by physiography. So this is the Indian subcontinent. इतना सा है हमारा इस यूनिट पे। लोकेशन सेटिंग ऑफ इंडिया है, इस जस्ट इसके अंदर ऐसा बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन वन वर्ड क्वेश्चन बहुत पूछने का चांसेस इसके अंदर से है। That's why they have added this in our syllabus also. I think I have covered many points here. फिर भी ऐसे बोल नहीं पाएगा जैसे हम फिजियोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी में बोला ना, इसी में से आएगा।
ऐसे इसमें से we can't say from where they can ask multiple questions from different point areas. तो ये मेन पॉइंट्स है, इसके साथ आपको और रेफर करना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक्स है ना, ये सब रेफर करके पढ़ना पड़ेगा, जितना भी ले लो. We can't say that this is the limit. That is the program of this chapter. ठीक है. जी सर. सर एक बार वो पीडीएफ भेजने से पहले ना थोड़ा यूनियन टेरिटरी को थोड़ा चेक वो करके कंफर्म चेक करके सेंड करेंगे. जी सर, कंफ्यूज है इसलिए पूछ रहे सर. हाँ. ओके, थैंक यू सर.